Good evening and welcome back to One TV News with me, Yasma. The Telangana government has announced a significant partnership with Google to establish India's first Google Safety Engineering Center or GSEC in Hyderabad. This center will be the first of its kind in the Asia-Pacific region outside Tokyo and the fifth globally, following centers in Dublin, Munich, Malaga and Tokyo. GSEC will serve as a dedicated cybersecurity hub developing security solutions for both Indian and global challenges. The center will foster advanced research, AI-powered security tools and collaboration among experts, promoting skill development, employment and cybersecurity innovation in India. The Hyderabad Traffic Police used JCB machinery to remove illegal encroachments along both sides of the national highway at Kotapet, Raithu Bazar and NTR Nagar vegetable markets. This encroachment involved large-scale shed and grill constructions on footpaths, causing serious traffic obstructions. The police warned that legal action would be taken if brokers continue to create unauthorized encroachments on the streets under the guise of small traders. They urged small traders to ensure they do not encroach upon the road and remain in the orderly line. Congress leader and leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, was stopped by the Uttar Pradesh police at Ghazipur border while attempting to travel. A prolonged argument ensued between the police and Rahul, but they refused to let him proceed. Expressing frustration, Rahul Gandhi stated, "We wanted to assess the situation, but the police are stopping us. This is my constitutional right, yet I am being stopped." He further claimed he was willing to go alone or under police guidance, but they denied him permission. Holding up the constitution, Rahul Gandhi called this a violation of the constitution, stating that it represented a weakening of the constitution in the new India. नमस्कार। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।
With the Delhi Assembly elections of 2025 approaching, the political temperature is rising. Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal made serious accusations against the BJP, alleging that the party has filed a petition to cut votes from thousands of voters. In a post on X, or formerly Twitter, Kejriwal claimed that the BJP would soon make a major revelation about this issue. He also issued whether the BJP had used similar tactics to win elections in Maharashtra and Haryana. Kejriwal warned the BJP that their plan would not succeed in Delhi and any attempts at election fraud would be exposed. Following the Sambhal violence, political tensions have risen, with opposition leaders expressing their intent to meet the families of those killed in the violence and opposing the administration's restrictions. In this context, Congress leader Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi were stopped at the Ghazipur border. Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav expressed his displeasure and raised questions about the role of the Uttar Pradesh police. He stated that under the BJP government, the police's job had become one of trapping people rather than delivering justice. He also accused the administration of carrying out the violence under the BJP's direction, calling it intolerable in a democracy. आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, नेता का जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोस होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को? अखिलेश जी, आप से कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है यूपी पुलिस की, कुछ फॉरेन कार्ट्रिज उसमें पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। सर, सुखबीर सिंह बादल पर भी गोल्डन टेम्पल में बहुत दुखद है कि इस तरह की घटना नहीं हो और सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और जहां कहीं भी इस तरह के आयोजन हो या धार्मिक चीज़ों में वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर, किसानों के मुद्दे पर वाइस प्रेसिडेंट जी ने देखिए, किसान के मुद्दे पे बात ना हो, उनकी पैदावार की कीमत अच्छी मिले उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उस पर चर्चा ना हो, रोजगार नहीं हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए तो संभल हो रहा है। संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो बोट की लूट हुई उस पर चर्चा नहीं हो, पुलिस ने बोट नहीं डालने दिया इस पर चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी, कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए बाजार में, सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए। मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है उसकी वजह से देश में महंगाई है। There has been a report of an assassination attempt on Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal. The incident occurred at the Golden Temple in Amritsar, where Badal, who was serving a religious penance in connection with a sacrilege case, was shot at the morning of Wednesday. However, he narrowly escaped the attack. The firing in front of Darbar Sahib caused a commotion within the temple premises. The attacker was captured by the people present at the scene. फायरिंग करके जानलेवा हमला जड़ा उन्होंने अपने सेवक के सिर पे हाथ रख के सारा जड़ा
और इस घटना की मैं पार्टी वालों निखेधी भी करता और ये पंजाब वास्ते जिहड़ी है ये घटना बहुत वड्डी घटना है कि असी पंजाब नूं दोबारा किहड़े दौर दे विच धक रहे हैं। हमको फिर दोबारा उसी आग में धकेलने की बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ी साजिश है कि एक गुरु रामदास के द्वार के ऊपर जो चौकीदार की सेवा कर रहे थे सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, उनके ऊपर पिस्टल से फायरिंग की गई। गुरु रामदास का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी जान बची। गुरु ने खुद ढाल बन के उनको बचाया। लेकिन ये पंजाब के हालात क्या है, कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं अकाली दल की लीडरशिप के खिलाफ और फिर पंजाब को दोबारा उसी आग में धकेलने की कोशिश हो रही है, ये उसका नतीजा है। तो मैं भगवंत मान से भी पूछता हूं कि ये क्या हाल है तुम्हारी स्टेट का, क्या बना दिया। ये पंजाब पुलिस को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप इस अकाली लीडरों की सिक्योरिटी जानबूझ के विड्रा कर रहे हो, ये मौके दे रहे हो आप कि उनके ऊपर हमले जो है होंगे। इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन है तय तय को उसी के हो जाना। Devendra Fadnavis of the BJP has been chosen as the next Chief Minister of Maharashtra. The Mahayuti or Grand Alliance gave its approval to Fadnavis's name in a meeting on Wednesday, where he was elected as the leader of the BJP legislative party. The meeting also agreed to make Eknath Shinde and Ajit Pawar the deputy chief ministers of the state. After this decision, Fadnavis along with his supporting legislators will meet the governor to claim the formation of the government. The Mahayuti leaders will hold a swearing-in ceremony on December 5 at Azad Maidan, which will be attended by several senior BJP leaders. चंद्रशेखर बावनकुळे जी, माननीय विनोद तावडे जी, माननीय शिवप्रकाश जी, मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय आशिष शेलार जी, प्रवीण दरेकर जी, या ठिकाणी आपल्या सहयोगी पक्षाचे जनसुराज्याचे विनय कोरे जी, त्याचप्रमाणे युवा स्वाभिमानचे रवी राणा जी, रासपचे रत्नाकर गुट्टे जी, आपल्याला ज्यांनी समर्थन दिलं ते एकमेव अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे विधानमंडळातील माझे सर्व ज्येष्ठ सहकारी, कोर कमिटीचे सर्व सदस्य, माझ्या सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली आणि ही निवड प्रक्रिया करण्याकरता या ठिकाणी आलेले माननीय रुपाणीजी आणि माननीय निर्मला सीतारामनजी यांचे देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना याची कल्पना आहे की यावेळची निवडणूक एक अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारची निवडणूक राहिली आहे आणि या निवडणुकीचं विश्लेषण करायचं झालं तर मी असं म्हणेन की या निवडणुकीने एक गोष्ट आपल्यासमोर निश्चितपणे ठेवली आहे, ती म्हणजे एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये विजयाची मालिका ही लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा हरियाणापासून सुरू झाली आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो। अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। विशेषतः या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपल्या सोबत पूर्णपणे तनमनाने या ठिकाणी असलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी
आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवारजी यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो आणि तद्वतच आमचे आरपीआयचे नेते रामदास आठवलेजी आणि आमच्या सगळ्या मित्रपक्षांचे देखील मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे अतिशय महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. एकीकडे आपण सगळे लोक ज्या प्रक्रियेतनं निवडून येतो ती प्रक्रिया ज्या संविधानाने आपल्याला दिली, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेलं आमचे संविधान, या संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि म्हणून सर्वार्थानं एक अत्यंत महत्त्वाचं अशा प्रकारचे वर्ष आहे. कारण आपल्याला कल्पना आहे की देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी हे देखील नेहमी सांगतात की कुठल्याही ग्रंथापेक्षा, धर्मग्रंथापेक्षा माझ्याकरता भारताचं संविधान सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि एक असं संविधान की ज्या संविधानाने प्रत्येक भारतीयाला जगण्याचा, मोठं होण्याचा, समृद्ध होण्याचा अधिकार दिला आणि भारताला जगातले एक उत्तम राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम केलं. अशा या संविधानाच्या 75 वर्ष पूर्ण होणाऱ्या अमृत महोत्सवी वर्षात पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सरकार स्थापन करतोय. दुसरं, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की ज्यांनी समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं. त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300व जयंती वर्ष हेच आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यासोबत ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध जल, जमीन आणि जंगल वाचवण्याचा लढा उभारला आणि खऱ्या अर्थानं इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं, ते भगवान बिरसा मुंडा यांचीही 125वी जयंतीचं हे वर्ष या ठिकाणी आपण साजरं करतोय. आणि अर्थातच आपल्या सर्वांचे लाडके नेते ज्यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली, ज्याची मुहूर्तमेढ केली, आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जो नवभारत तयार होतोय त्याचा पायवा ठेवणारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचं देखील हे 100वे जयंती वर्ष आहे. त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने ही सगळी जबाबदारी आज महायुतीवर या ठिकाणी सोपवलेली आहे. खरं म्हणजे इतका मोठा जनादेश हा आपल्याला या ठिकाणी जनतेने दिलेला आहे की या जनादेशातून मी एवढंच म्हणेन की आनंद आहे, पण त्याहीपेक्षा जबाबदारी आपली वाढलेली आहे. प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव करून देणारा अशा प्रकारचा जनादेश हा जनतेने आपल्याला दिलेला आहे. आणि विशेषतः आपल्या लाडक्या बहिणी असतील, आपले लाडके भाऊ असतील, आपले लाडके शेतकरी असतील, आपले लाडके युवा असतील, या सगळ्यांनी आणि समाजातल्या दलित, वंचित, ओबीसी, आदिवासी सगळ्यांनी South Korean President Yoon Suk Yeol declared an emergency martial law on Tuesday, December 3rd, 2024. The president accused the opposition of attempting to control the National Assembly, sympathizing with North Korea and engaging in activities aimed at weakening the government. This move reflects the deepening political crisis in the country, where President Yoon has faced continuous challenges from the opposition-controlled National Assembly. Yoon justified the decision as necessary to maintain the country's constitutional order. 봉급과 수당 인상, 당직 근무비 인상 등 군 간부 처우 개선비조차 제동을 걸었습니다. 이러한 예산 폭거는 한마디로
대한민국 국가 재정을 농락하는 것입니다. 예산까지도 오로지 정쟁의 수단으로 이용하는 이러한 민주당의 입법 독재는 예산 탄핵까지도 서슴지 않았습니다. 국정은 마비되고 국민들의 한숨은 늘어나고 있습니다. 이는 자유 대한민국의 헌정 질서를 짓밟고 헌법과 법에 의해 세워진 정당한 국가기관을 교란시키는 것으로서 내란을 획책. A 5.3 magnitude earthquake struck Mulugu district on Telangana on Wednesday morning at 7:27 a.m., with tremors felt in Hyderabad and parts of Andhra Pradesh. The earthquake caused panic among residents, but there were no immediate reports or casualties of the major damage. Tremors were also experienced in Maharashtra's Nagpur, Gadchiroli and Chandrapur districts, with mild shocks reported. Authorities have urged residents to stay vigilant and avoid unsafe buildings. Telangana is in seismic zone 2, which experiences low-intensity earthquakes, and this is the strongest earthquake in the region in the last 20 years. That's all for today. Stay connected for more updates. Thank you.